الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جیسی بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی ہے. میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، شاید اردو زبان آپ پر بھاری ہو، سلسلہ بنگلہ زبان کا چل رہا تھا، اچانک اردو زبان میں سننا تھوڑا سا ناگوار سا محسوس ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا وقفہ انتہائی کم کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر کوئی ہر سبجیکٹ میں اسپیشل کورس کر رہا ہے. آرٹس والے آرٹس میں اسپیشل کورس کر رہے ہیں، میڈیکل والے میڈیکل میں، اور اس کے بھی کئی وبھاگ ہیں، کئی شعبے ہیں. کوئی سینے کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی پیٹ کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی سر کے لیے خاص ہے، کوئی آنکھ کے لیے خاص ہے، کوئی کان کے لیے خاص. صرف میڈیکل شعبے میں اتنے بھاگ آ گئے ہیں. لہٰذا آپ کا یہ سوچنا کہ میرا بیٹا عالم بھی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، تو یہ ناممکن ہے. یہ زمانہ اسپیشلائزیشن کا ہے، لہٰذا اسپیشل اگر بنانا ہے تو ایک ہی فیلڈ میں آپ کو بنانا ہوگا، اور یہی سوچ کر کے کنفرم کر کے دینی ادارے میں بھیجنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو برباد نہیں کرتا جو قوم کے لیے، ملت کے لیے درد رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے. گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرا سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کو تسلی دیتے ہوئے کلمات کہے وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کمزوروں کو آپ سہارا فراہم کرتے ہیں. تو جو ملت کے لیے فائدہ مند ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد نہیں کرے گا. اس لیے اس طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ توحید و سنت کے راستے پر کام کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیجئے، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد نہیں کرے گا. تو میں آپ کے سامنے چند نصوص کو، چند دلائل کو رکھوں گا جن میں جہالت کے نقصانات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی دلیل ہمارے سامنے ایک آیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، شرک اور بت پرستی سے باز آنے کے لیے کہا، تو قوم والوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اپنے آپس میں کہا کہ تم لوگ ہرگز اپنے بھگوانوں کو مت چھوڑو، ود کو مت چھوڑو، سواع کو نہ چھوڑو، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو. صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر 5 لوگ ہیں، یہ 5 آدمیوں کے نام ہیں. یہ علاقے والوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے.
क्योंकि आपके आसपास शिरक और बुत परस्ती और बिदअत का बोलबाला है। लिहाजा शिरक की इब्तिदा कैसे हुई? शिरक जो दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका आगाज शैतान ने किस प्लानिंग के तहत कर दिया, ये सोचने की बात है। तो ये जो 5 आदमी हैं, वद, सुआ, यगूस, याउक, नस, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि ये नेक लोग थे। नेक लोगों के नाम है, अच्छे लोगों के नाम है, बुरे लोग नहीं है। लेकिन इनका प्रभाव इतना, इनका असर इतना ज्यादा समाज में था कि जब इनकी वफात हो गई तो लोगों को इनकी याद तड़पाने लगी। शैतान ने आकर के मशवरा दिया कि इनके स्टैचू बना लो, मुजस्समे बना लो, मूर्तियां बना लो, और इनको देख करके इनका जो चरित्र है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो आदत है, इबादत में इनका जो शौक है, वो अपना लो। इस तरह से बहकाया कौम वालों। उस वक्त तो तस्वीर हराम नहीं थी, लोगों ने मुजस्समे बनवा लिए। वो नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल आई। दूसरी नस्ल वालों को शैतान ने सिखाया कि ये जो है इबादत के वक्त सामने रख करके इनकी इबादत करो तो मजा आएगा, एक नया शौक और जज्बा और वलवला पैदा होगा। लोगों ने सामने रखकर इबादत करना शुरू किया। फिर जब वो जमाना गुजर गया और नए लोग आ गए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, बूढ़े थे वो मर गए, तब शैतान ने आकर के कहा कि तुम्हारे बाप दादा जो है इनकी पूजा करते थे। तो चूंकि इन लोगों ने, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को पीर बना रखा था, 5 लोगों को पीर बना रखा था, इसीलिए शैतान ने इसका फायदा उठाया और स्टेप बाय स्टेप इनको बर्बाद कर दिया, गुमराह कर दिया। अचानक शैतान ने नहीं कहा कि तुम इनकी पूजा करो, इसीलिए कुरान ने कहा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। खुतुवात का मतलब यही होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप लोगों को गुमराह करता है। तो इससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब वतनस्सखल इल्म, कुछ रिवायतों में है नुसियल इल्म, जब इल्म भुला दिया गया तब लोग जो है शिरक में गिरफ्तार हो गए। एक तो यह है कि यहां गुलू हो रहा है, यानी ज्यादा ही उनको बढ़ा चढ़ा करके लोगों ने मान लिया था और इस तरह से शिरक में गिरफ्तार हो गए। और दूसरी जो शिरक की वजह है वो ये है कि इल्म जो है भुला दिया गया, जहालत फैल गई। तो जहालत के फैलने की वजह से शिरक की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए किसी भी समाज में दीन का इल्म होना इंतहाई जरूरी है, वरना शिरक और बिदात से बच पाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो दुनिया में जो शिरक की सबसे पहली शुरुआत हुई वो गुलू की वजह से और जहालत की वजह से हुई, जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया। दूसरी रिवायत आपने सुना होगा, ये भी सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में ये किस्सा मौजूद है कि एक आदमी ने 99 आदमियों का कत्ल कर दिया था, सुना होगा। उसने पूछा कि कौन सबसे ज्यादा इस जमीन का जानकार है, ज्ञानी है, वो मुझे बताओ। हदीस में लफ्ज है अअलम अहलिल अर्द, कि सबसे ज्यादा जानकार जो रुए जमीन पर है इस वक्त, उसके बारे में मुझे बताओ, मुझे पूछना है। लोगों ने क्या बताया? राहिब के बारे में बताया। वो तो आलिम नहीं था, वो बस इबादत गुजार था, परहेजगार था, लेकिन आलिम नहीं था। लेकिन लोगों ने समझ लिया था कि आलिम है। अब वो आदमी गया और जाकर के जब पूछा कि मैंने 99 आदमियों का मर्डर किया है, कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो उसने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि इतना बड़ा जुर्म किया है, तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है? उसको भी मार दिया। तो जहालत बसा औकात अपनी जान के लिए भी खतरा होती है। उस राहिब ने जान क्यों गंवाई? जहालत की वजह से। अगर उसको नहीं मालूम था तो उसको बताना चाहिए था कि मुझसे जो बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, उनसे जाकर सवाल करें। लेकिन वो खुद से आलिम बन गया और सवाल करने लगा। आज भी बहुत सारे लोग समाज में आपको मिल जाएंगे जो लोग आलिम नहीं हैं, लेकिन वो फतवा की मसनद पर बैठते हैं और फतवा देते हैं। तो ये जहालत जो है अपनी जान के लिए भी खतरनाक है। तो ये दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा नुकसान,
तीसरी रिवायत जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये आखिरी रिवायत है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। अबू दाऊद वगैरह में ये रिवायत मौजूद है कि कुछ सहाबा किराम सफ़र में निकले। एक सहाबी के सर पे पत्थर से चोट लग गई, सर फट गया और इत्तेफाक से रात में उनको एहतलाम हो गया, नापाक हो गए। तो उन्होंने मसला पूछा कि क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सर जो है फटा हुआ है और पानी चला जाएगा तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो लोग जो वहां थे उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, पानी इस्तेमाल करने की जब ताकत है तो आप तयम्मुम क्यों करेंगे। तो उन्होंने गुस्ल कर लिया और उनकी मौत वाक़ई हो गई, इंतकाल कर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, कि इन लोगों ने उस आदमी को कत्ल कर दिया। क्या उनको ये तौफीक नहीं मिली कि वो जानकार से पूछ लेते कि असल मसला क्या है। तो ये जो चंद रिवायात हैं जो आपके सामने पेश की गई, इनके जरिए से आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि इल्म का ना होना, जहालत का होना ना सिर्फ अपनी जान के लिए खतरे का बायस है बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरे का बायस है, शिर्क और बिदआत के पनपने का जरिया है। लिहाजा अगर आपके इलाके में कोई मदरसा ऐसा है जो इल्म की नशर व इशाअत कर रहा है तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की इस इलाके पर बड़ी नेमत है और इस पर शुक्रगुजार बनना चाहिए, इसकी कदरदानी करनी चाहिए और हर मुमकिन इसको मदद पहुंचानी चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। शुक्रिया अदा करने पर अल्लाह तबारक व तआला नेमत में बरकत अता फरमाता है और वो नेमत जो है बढ़ जाती है। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि इलाके में जो जहालत फैली हुई है उसका हम मुकाबला करें। यह ज़माना आइडियालॉजिकल वार का ज़माना है, यह विचारधाराओं के युद्ध का ज़माना है। विचारधारा के ज़रिए से लड़ाई चल रही है। लोग अपने नज़रियात और विचारधाराओं को आपके जहनों में थोपना चाहता है। कोई कम्युनिज्म के नाम पर, कोई इल्हाद के नाम पर, एथीज़म के नाम पर, कोई इंसानियत और ह्यूमैनिज्म के नाम पर आपके जहनों पर गलत अफकार और नजरियात डालता है और हमारे पास चूंकि उन अफकार और ख्यालात और उन हथियारों का मुकाबला करने की ताकत नहीं होती, इसीलिए हम हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। बहुत सारे लोग मुर्तद हो जाते हैं, दीन इस्लाम से निकल जाते हैं। हमारी लड़कियां जो है गैरों के साथ शादी रचा करके बेदीन हो रही है, मुर्तद हो रही है। लिहाजा बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आपके यहाँ जो भी इदारे पनप रहे हैं उनको मजीद आप सपोर्ट फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप हजरात के बारे में बहुत कुछ सुना, आपकी तारीफें सुनी, आप इस इदारे को बहुत ज्यादा चाहते हैं इसके बारे में सुना, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसके बारे में सुना। मुझे उम्मीद है कि मजीद आप सपोर्ट जारी रखेंगे, हर मुमकिन ताउन पेश करेंगे और वेस्ट बंगाल के लिए इस इदारे को एक मिसाल बना करके दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपके जज्बात की कदर करते हुए अल्लाह ताला मजीद आपको नवाजे, आपके नहालान को बड़े बड़े उलमा बन करके कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।